Hello everyone, welcome to my channel and I hope you are preparing well for the NEET examination as it is very near. We don't have sufficient time to revise each and everything, but at least we must be very thorough with the NCERT. So I have come up with the NCERT Audible series. You can just listen each and every point of NCERT. I have repeated every important point 2 to 3 times so that you can remember that point. And whenever you are free or whenever you are going for a jogging, walking, or doing something, so you can just plug your headphones and just listen to it. It will help you a lot to improve your score. So let's begin with the third part of the video, that is role of macro and micronutrients. Essential elements perform several functions. They participate in various metabolic processes in the plant cells such as permeability of cell membrane, maintenance of osmotic concentration of cell sap, electron transport system, buffering action, enzymatic activity, and act as major constituents of macromolecules and coenzymes. So role of macro and micronutrients. Essential elements perform several functions. They participate in various metabolic processes in the plant cells such as permeability of cell membrane. So essential element, they perform several functions. They are helpful. They are essential for plant growth and metabolism. So they participate in several functions. They participate in various metabolic processes in the plant cells such as permeability of cell membrane, maintenance of osmotic concentration of cell sap, electron transport system, buffering action, enzymatic activity, and act as major constituents of macromolecules and coenzymes. So essential element, they perform several functions and they participate in various metabolic processes in plant cells such as permeability of cell membrane. सेल के अंदर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, maintenance of osmotic concentration of the cell sap, electron transport system, buffering action, enzymatic activity, act as major constituents of macromolecules and coenzymes. So act as major constituent of macromolecules and coenzymes. So they perform several functions. Who essential elements? They participate in various metabolic processes in the plant cell, such as permeability of the cell membrane. So permeability of the cell membrane decides what molecules should enter the cell. Maintenance of the osmotic concentration of the cell sap. Okay, they allowed some molecules. And how is the concentration of the cell sap? So the osmotic concentration of the cell sap is very important. Electron transport system is very important. Electron transport system, ETS, like in mitochondria we have seen, it's a last step of respiration. Buffering action, like maintaining the pH. Enzymatic activity, and act as major constituents of macromolecules and coenzymes. So macromolecules, coenzymes, so the essential elements are part of these macromolecules. They are structural major constituents of macromolecules and coenzymes. Various forms and functions of essential nutrient elements are given below. Various forms, the functions of essential elements are given below. So we'll discuss each and everything line by line. So nitrogen, this is essential nutrient element required by plants in the greatest amount. सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट चाहिए? सबसे ज़्यादा एलिमेंट चाहिए नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट अमाउंट. मेनली अब्जॉर्ब्ड, मेनली किस में अब्जॉर्ब होता है? NO3 माइनस आयोन, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयोन, NO3 माइनस. तो मेनली अब्जॉर्ब्ड एज NO3 माइनस. N2 के फॉर्म में कोई प्लांट अब्जॉर्ब नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि N2 का जो N ट्रिपल बॉन्ड है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वो आसानी से टूटता नहीं है, तो प्लांट उसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकते. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते. कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं लेकिन नाइट्रोजन नहीं ले सकते, बिकॉज नाइट्रोजन का N ट्रिपल बॉन्ड N जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और प्लांट्स उसको ब्रेक नहीं कर पाते. इसलिए उनको बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है जो सॉइल में रहते हैं, that can break down the N triple bond N and can form nitrate, ammonia, ammonium. So these are important. So जो NO3 माइनस आयन है वो प्लांट्स मेनली प्रीफर करते हैं अब्जॉर्ब करने के लिए. सो इट इज़ अब्जॉर्ब मेनली एज NO3 माइनस आयन. दो सम आर ऑल्सो टेकन एज NO2 माइनस नाइट्राइड आयन के फॉर्म में भी रहता है, अमोनियम आयन के फॉर्म में भी रहता है, लेकिन मेनली नाइट्रेट आयन NO3 माइनस आयन रहता है.
उसमें 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी साथ में मिल जा रहा है ना, तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, नाइट्रोजन भी मिल रहा है, तो NO3 माइनस के फॉर्म में अब्जॉर्ब हो रहा है। ऐसे याद रख सकते हो। दो सम आर ऑल्सो टेकन एज NO2 माइनस के फॉर्म में भी लेते हैं, NH4 प्लस के फॉर्म में भी लेते हैं। नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो नाइट्रोजन हर पार्ट ऑफ द प्लांट को रिक्वायर है, बिकॉज देखो बॉडी किसकी बनी है, प्लांट बॉडी। प्लांट किससे बना है, प्रोटीन्स से, मैक्रोमोलिक्यूल्स से, सेल से। सो जो भी सेल्स हैं, जो भी प्रोटीन्स है, उसमें ना कॉन्स्टिट्यूएंट मेन एलिमेंट नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन हर पार्ट में रिक्वायर्ड है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन्स बहुत रिक्वायर्ड है, हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है। मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, या हेयर्स आर मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन। सो प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए नाइट्रोजन, प्रोटीन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेन एलिमेंट कौन सा होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पर्टिकुलरली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं, नए सेल्स बना रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है। एंड द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, जो प्रोटीन सिंथेसाइज करें, जो न्यू सेल सिंथेसाइज करें और जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। इन दोनों के लिए क्या रिक्वायर्ड, ऐसे सेल्स के लिए सबसे ज़्यादा क्या रिक्वायर्ड होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। ये बोल दिया, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स। एनसीईआरटी बोल रही है कि प्रोटीन्स में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन, वाइटामिन्स में, हार्मोन्स में। सो इन सब में क्या होता है, नाइट्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सो नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन लार्जेस्ट अमाउंट, ग्रेटेस्ट अमाउंट, सबसे ज़्यादा। It is absorbed mainly as nitrate, NO3 minus ion, though some are also taken as NO2 minus or NH4 plus. Nitrogen is required by all parts of the plant, particularly meristematic cells जो continuously divide हो रहे हैं, new cells बना रहे हैं, and metabolically active cells के लिए भी required है। Nitrogen is one of the major constituents of proteins, nucleic acids, minerals, vitamins, hormones. सो वाइटामिन्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन। टॉकिंग अबाउट, इसलिए ना सबसे पहले ना एनसीईआरटी ने मैक्रोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले नाइट्रोजन दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फास्फोरस। सो ना ऊपर हेडिंग में देखा, वेरियस फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स देखे, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नॉन मिनरल एलिमेंट है, नॉन मिनरल एलिमेंट, क्योंकि ये हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्लांट को मिल जाते हैं ना, तो इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया है। नाइट्रोजन क्या है, मिनरल है। मिनरल मतलब, मिनरल न्यूट्रिएंट मतलब जो सॉइल में से अब्जॉर्ब हो रहा है। सो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। टॉकिंग अबाउट फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन, इधर एज H2PO4 माइनस चलेगा एंड HPO4 माइनस 2 भी चलेगा। तो ये फॉस्फोरस कौन से फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है, फॉस्फेट आयन। तो ना क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि फॉस्फोरस इज अब्जॉर्ब्ड इन विच फॉर्म, फॉस्फेट आयन, और अलग अलग ऑप्शन दे देंगे। तो फॉस्फोरस इज अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन। सो फॉस्फोरस इज अब्जॉर्ब्ड एज फॉस्फेट आयन, फॉस्फोरस फॉर्म, P4 फॉर्म। तो ऐसे ना अलग अलग ऑप्शन से देगा, तो आपको पहचानना है कौन से फॉर्म है। तो याद रखना फॉस्फेट फॉर्म में, जैसे नाइट्रोजन मेनली नाइट्रेट आयन NO3 माइनस के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है, सिमिलरली फॉस्फोरस फॉस्फेट आयन के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है। और फॉस्फेट क्या होता है, H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस। तो H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस 2 में भी अब्जॉर्ब हो जाता है। फॉस्फोरस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोरस, फॉस्फोलिपिड्स पढ़ा है ना, सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन किससे बनाता है, फॉस्फोलिपिड्स। सो फॉस्फोरस इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सर्टेन प्रोटीन्स में भी फॉस्फोरस होता है, ऑल न्यूक्लिक एसिड्स में फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसलिए तो न्यूक्लिक एसिड बोला है, क्योंकि DNA एसिडिक क्यों होता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फोरस होता है। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरस नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड क्या है, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। सो फॉस्फेट किस में होता है, न्यूक्लियोटाइड में होता है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप।
एंड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन. फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन मतलब जिसमें फॉस्फोरस का एडिशन हो रहा है. जैसे ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर फर्स्ट ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो ग्लूकोज में एक फॉस्फोरस 6th पोजीशन पे ऐड हुआ तो उसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन. तो जो भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है उसमें फॉस्फोरस यूज़ होता है. ऑफ कोर्स फॉस्फोरस ऐड करें तो फॉस्फोरस तो यूज़ होगा. तो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन मतलब जिसमें फॉस्फोरस ऐड हो रहा है. तो फॉस्फोरस मेनली किस फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है, फॉस्फेट आयन HPO4 माइनस और H2PO4 माइनस या HPO4-2. फॉस्फोरस इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स. सर्टेन प्रोटीन्स में भी होता है, ऑल न्यूक्लिक एसिड्स में एंड न्यूक्लियोटाइड्स में होता है, एंड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन. सो न्यूक्लिक एसिड में होता है. हमने ना न्यूक्लिक एसिड्स के डिटेल स्ट्रक्चर्स और न्यूक्लियोटाइड्स के डिटेल स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं इन द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में. सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. It's very important chapter. Don't miss each and every line is important. Remember it, learn it. Next है potassium. Potassium it is absorbed as potassium ion. Potassium ion क्या होता है, K+. So potassium is absorbed in the form of K+. In plants this is required in more abundant quantities in the meristematic tissues, buds, leaves and root tips. So potassium absorbed as potassium ion. So K+ के फॉर्म में absorb होता है. In plants this is required in more abundant quantities. This is required in more abundant quantities in meristematic tissues. Meristematic tissues में required है सबसे ज़्यादा जो actively dividing tissues हैं उसमें. Birds में जो कलियाँ खिली हैं, flower birds. Leaves में भी and root tips. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, बर्ड्स में, लीव्स में, रूट टिप्स जो भी ग्रोइंग पार्ट है ना उसमें इम्पॉर्टेंट है पोटाशियम. लीव्स में गॉड सेल्स यूटिलाइज करते हैं स्टोमेटा ओपन क्लोज करने के लिए. बर्ड्स में रिक्वायर्ड है, रूट टिप्स में रिक्वायर्ड है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब रूट टिप्स एंड शूट टिप्स. सो इसमें रिक्वायर्ड होता है. पोटाशियम हेल्प्स टू मेंटेन एन एनियन कैटायन बैलेंस. तो पोटाशियम क्या मेंटेन करने में हेल्प करता है, एनियन कैटायन बैलेंस. एनियन और कैटायन बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्स में. तो ये कौन मेंटेन करता है, पोटाशियम. एंड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. सो एनियन कैटायन बैलेंस में पोटाशियम हेल्प्स टू मेंटेन, क्योंकि K+ कैटायन है. सो एनियन कैटायन बैलेंस पोटाशियम ना अगर हम केमिस्ट्री से रिलेट करें तो पोटाशियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप 1A ग्रुप एलिमेंट्स. तो ना ये ना किंग की तरह बिहेव करेगा और एनियन कैटायन का बैलेंस करेगा. एंड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना है तो पोटाशियम इन्वॉल्व होगा. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाय चेंजिंग द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल्स. सेल्स की टर्जिडिटी मेंटेन करता है, सेल मेम्ब्रेन सेल के टर्जिडिटी मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है. सो पोटाशियम एनियन कैटायन बैलेंस कि इतना एनियन रहना चाहिए, इतना कैटायन रहना चाहिए. इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स. लेकिन एक बात है पोटाशियम की कि वो जो पोटाशियम है ना, ये पोटाशियम किसी भी बायोमॉलिक्यूल का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है पोटाशियम. पोटाशियम प्रोटीन बना देगा, प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, चेंजिंग इन द टर्जिडिटी, मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम. लेकिन ना पोटाशियम कभी भी इट डज नॉट एक्ट एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ एनी बायोमॉलिक्यूल. इट डू नॉट एक्ट एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ एनी बायोमॉलिक्यूल. ठीक है. सो पोटाशियम की खासियत है कि इट्स डू नॉट एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी बायोमॉलिक्यूल. लेकिन पोटाशियम एक्टिवेट करेगा, एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है ना. तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी पोटाशियम इन्वॉल्व होता है. K+ आयन्स के फॉर्म में ही एक ही है, K+ आयन के फॉर्म में. नाइट्रोजन तो 3 जैसे NO3-, NO2-, NH4+, 3 फॉर्म में. और मेन कौन सा है, NO3-. फॉस्फोरस फॉस्फेट आयन,
phosphate, nitrogen nitrate, phosphate HPO4 minus, H2PO4 minus, H2PO4 minus and HPO4 minus 2. So potassium बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करता है. पोटाशियम और क्लोरीन और सोडियम, ये तीन एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल आयंस, K+Cl- Na+. जो Na+ है वो तो बेनिफिशियल है, नासी कोसे वाला ट्रिक याद है ना. इफ़ यू डोंट नो दिस ट्रिक, गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो. देयर आई हैव गिवन अ वेरी फनी ट्रिक टू रिमेंबर essential elements and beneficial elements. So K+, पोटाशियम, Cl-, ये दो क्या हैं, K+ मैक्रो न्यूट्रिएंट है और Cl- माइक्रो है और Na+ इज़ बेनिफिशियल. तो ये तीन कंट्रीब्यूट टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. एंड पोटाशियम जो है, इट्स नॉट अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ एनी बायोमोलिक्यूल. पोटाशियम इज़ नॉट अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ एनी बायोमोलिक्यूल. तो ये कैटायन एनियन बैलेंस मेंटेन करता है. इट मेंटेन्स कैटायन एनियन बैलेंस एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, टर्जिडिटी ऑफ सेल्स. ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, बर्ड्स में और लीव्स में और रूट टिप्स में, है ना. नेक्स्ट टॉक अबाउट कैल्शियम. तो कैल्शियम एक मैक्रो एलिमेंट है, चॉन का मैगी पार्सल करना, तो उसमें से का जो है कैल्शियम है. प्लांट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल. प्लांट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयोन्स. Ca+2 आयोन्स के फॉर्म में कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है. कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज़. क्योंकि ना जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम पेक्टेट फॉर्म करता है. कैल्शियम पेक्टेट मिडिल लैमेलम का मेन, कैल्शियम पेक्टेट मिडिल लैमेलम बनाता है. तो कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि उधर नए नए सेल्स बन रहे हैं. तो नए नए सेल्स बनने के बाद कैल्शियम पेक्टेट की भी ज़रूरत पड़ेगी मिडिल लैमेलम बनाने के लिए, तो वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है. डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज़ में भी जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मिडिल लैमेलम बनाना है, तो उधर भी बहुत रिक्वायर्ड होता है. ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल. और ना प्लांट्स में अगर आपको याद है, तो प्लांट्स में सेल डिवीजन जो होता है ना, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है. सेल डिवीजन के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, याद है ना. तो एनिमल्स में क्या होता है, फर्रो बनता है, और प्लांट्स में सेल प्लेट, मतलब साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, सेल प्लेट के मदद से साइटोकाइनेसिस. अगर मैं थोड़ा डिटेल में बोलूँ तो जो कैल्शियम है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट्स. तो जब डिवीज़न हो रहा होता है ना, जब डिवीज़न हो रहा होता है, तब वो टाइम पे क्या होता है, वो टाइम पे कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है सेल प्लेट बनाने के लिए. गोल्जी अपैरेटस भी इन्वॉल्व होता है. तो लाइक इट इज़ आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया कि वाई इट इज़ रिक्वायर्ड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्योंकि वहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, वहाँ पे कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होगा. सो प्लांट्स में कैसे होता है बोलते, तो सेल प्लेट फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि जो सेल प्लेट है वो कैसे बनता है बोलते, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, वो गोल्जी वेसिकल्स रिलीज़ करेगा, फ्लूइड पेक्टेट एंड कैल्शियम होगा, तो वो फ्रैग्मोप्लास्ट बनाता, हॉलो शेप स्ट्रक्चर बनाता, एंड उससे सेल प्लेट बनता. तो इट इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट फॉर मेरिस्टेमेटिक सेल्स. तो मिडिल लैमेलम है ना, जो उसमें ना कैल्शियम पेक्टेट मेन है, मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है, लेकिन कैल्शियम मेन है. सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल बनाना है तो भी कैल्शियम ज़रूरत पड़ती है ना, पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पेक्टेट इन द मिडिल लैमेलम. तो मिडिल लैमेलम सेल वॉल का ही पार्ट है ना, तो सेल वॉल बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, calcium pectin. It is also needed during the formation of mitotic spindle. It is also needed during the formation of mitotic spindle. So you know mitotic spindle क्या होता है,
माइटोटिक स्पिंडल, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उधर एक स्पिंडल apparatus बनता है. इट इज़ ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल. बनाने के लिए भी कैल्शियम रिक्वायर्ड है. इट एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स, क्योंकि कैल्शियम इमोबाइल है तो वो ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट हो जाता है. इट इज़ इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड है. तो कैल्शियम किस लिए रिक्वायर्ड है? सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. दिस इज इम्पॉर्टेंट. इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स, प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. सो कैल्शियम सर्टेन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है. कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है? दैट इज़ ATPase एंड अमाइलेज. ये दो एंजाइम्स हैं जो कैल्शियम एक्टिवेट करता है, ATPase एंड अमाइलेज. सो दो एंजाइम्स हैं ATPase एंड अमाइलेज. इनको ना याद रखना है कि ये कैल्शियम से एक्टिवेट होते हैं. कैल्शियम माइटोटिक स्पिंडल बनाने में काम में आता है, मिडिल लैमेला बनाने में, मतलब जो भी सेल डिवीजन से रिलेटेड है, सेल वॉल बनाने में, ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट हो जाता है क्योंकि ये इमोबाइल है. इट इज़ इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का एक अच्छा खासा फंक्शन होने के लिए कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड. It activates certain enzymes and plays an important role in regulating metabolic activities. को regulate करने के लिए क्या required है? Calcium. Now talking about magnesium, so it is absorbed by plants in the form of divalent Mg+2. So magnesium is absorbed by plants in the form of divalent Mg+2. Calcium also is divalent Ca+2. So Mg+2, calcium is absorbed as Ca+2. Magnesium is absorbed in the form of Mg+2 from the soil. It activates the enzymes of respiration. So magnesium activates the enzymes of respiration, photosynthesis, and are involved in the synthesis of DNA and RNA. So ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि DNA एंड RNA बनने के लिए ना हमें मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है. Mg+2 इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA and RNA. DNA and RNA involved, magnesium is involved in the synthesis of DNA and RNA. Magnesium activates the enzymes of respiration and photosynthesis. So ना photosynthesis के enzymes Rubisco, Pepcase and other carboxylases भी enzymes हैं, other carboxylases, उनके लिए भी Mg+2 is an activator. Magnesium is a constituent of the ring structure of chlorophyll. Ring structure of chlorophyll में सिर्फ एक मैग्नीशियम होता है and without that magnesium chlorophyll structure cannot exist. तो Mg+2 is very important क्योंकि देखो chlorophyll है बोल के ही light energy is absorbed and then it is converted into chemical energy, photosynthesis is taking place. So magnesium बहुत important है and helps to maintain ribosome structure. Magnesium is also important in maintaining ribosome structure. Ribosome, 70S and 80S ribosomes are there. For 70S, there are two subunits. One is 50S and one is 30S. Smaller subunit 30S, larger subunit 50S. They both lie separately in the cytoplasm. But when they are required, they are brought together by Mg+2. Okay. राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? Mg+2. टॉकिंग अबाउट सल्फर, सो जो सल्फर है, सल्फर, प्लांट्स obtain sulfur in the form of sulfate. Sulfate is SO4-2. Plants absorb sulfur in the form of sulfate. Sulfur is present in two amino acids. एक होता है सिस्टीन और एक होता है मिथ्योनाइन. And it's the main constituent of several coenzymes, vitamins, thiamine, biotin, coenzyme A and ferredoxin. So plants obtain sulfur in the form of sulfate. Sulfate क्या होता है? SO4-2. Sulfur is present in two amino acids. Cysteine and methionine. So जो sulfur है is obtained in the form of sulfate, SO4-2. Sulfur is present in the form of sulfate, that is SO4-2. So ये obtain कैसा होता है, मतलब सॉइल में से कैसे absorb होता है? सल्फेट, SO4-2. Sulfur is
present in two amino acids. Two amino acids बहुत important, cysteine and methionine. सिस्टीन एंड मिथ्योनिन. एंड सिस्टीन अगर देखें तो जो इंसुलिन है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, वो सिस्टीन प्रोटीन के प्रेजेंस की वजह से ही होता है. सिस्टीन एंड मिथ्योनिन दोनों में सल्फर होता है. एंड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स. बहुत कोएंजाइम्स का मेन कंस्टिट्यूएंट है सल्फर. वाइटामिन्स, थियामिन, बायोटीन, कोएंजाइम ए एंड फेरिडॉक्सिन. वाइटामिन्स जैसे कि थियामिन B1, बायोटीन, कोएंजाइम ए एंड फेरिडॉक्सिन, ये सब एंजाइम्स में क्या होता है, सल्फ़र है. कौन से वाइटामिन्स में, थियामिन, बायोटीन, फेरिडॉक्सिन, कोएंजाइम ए. सो इसमें सल्फ़र होता है, ठीक है. सो प्लांट्स ऑब्टेन सल्फ़र कौन से फॉर्म में, SO4-2 सल्फेट आयन. Sulfur is present in two amino acids, cysteine and methionine, and is the main constituent of several coenzymes. Vitamins like thiamine, biotin, or coenzyme A, ferredoxin. So sulfur stabilizes the structure of protein by forming disulfide linkages, as in tertiary proteins. And sulfur is also essential for root nodule formation. This is extra information. एंड कैल्शियम का हमने देखा था Ca+2 डाइवेलेंट आयन. और जो कैल्शियम है वो हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड. अगर सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से वर्क करना है तो कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड. कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. Calcium is required for the normal functioning of the cell membrane. Calcium is required for the normal functioning of the cell membrane. कोएंजाइम्स का भी पार्ट है. सिस्टीन, मिथ्योनिन, टू अमीनो एसिड्स जिसमें सल्फर पाए जाते हैं. वाइटामिन्स, थियामिन, बायोटीन, कोएंजाइम ए, फेरिडॉक्सिन, इसमें सल्फर होता है. सल्फर जो सिस्टीन, मिथ्योनिन है वो, जैसे सिस्टीन है वो इंसुलिन में पाया जाता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड से इंसुलिन को स्टेबलाइज करता है. नॉट टॉकिंग अबाउट आयरन, तो प्लांट्स अब्जॉर्ब आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन. सो दिस इज अ प्रीवियस क्वेश्चन. प्लांट्स obtain iron in the form of, so plants obtain iron in the form of ferric ions. Ferric ions क्या होता है, Fe+3. Fe+3 are called ferric ions. It is required in larger amounts in comparison to other micronutrients. So it is required in larger amounts in comparison to other micronutrients. It is an important constituent of proteins involved in transfer of electrons like ferredoxin, cytochromes. So plants obtained iron in the form of ferric ions, Fe+3. It is required in larger amounts in comparison to other micronutrients. इन कंपेरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयरन हमें लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैक्रो है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ती है अमॉन्ग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. इन कंपेरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयरन थोड़ा सा ज़्यादा काम में आता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स में इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेरिडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स. ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हेल्प करता है जैसे फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम्स. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इन फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम्स. It is reversibly oxidized from Fe+2 to Fe+3. 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 +2 से +3 रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है. कॉपर भी ऐसे ऑक्सीडाइज होता है. तो कॉपर एंड आयरन दो ऐसे हैं जो रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. it activates catalase enzyme and is essential for the formation of chlorophyll. तो क्लोरोफिल का कंस्टिट्यूएंट मैग्नीशियम है, लेकिन एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इज आयरन. आयरन ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन रिक्वायर्ड है, कैल्शियम.
और फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल के लिए एसेंशियल कौन सा है? आयरन। कि क्लोरोफिल बना किससे है? मैग्नीशियम का स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, रिंग स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूएंट मैग्नीशियम है, लेकिन एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल आयरन। और आयरन इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Fe+ टू Fe+3, +2 से +3 ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें +2 से +3 बन जाएगा, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं इसको। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इन फेरिडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स। कैटलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है कौन? आयरन। आयरन किसको एक्टिवेट करता है? कैटलेज एंजाइम। कौन से फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है? इसका Fe+3 ज़्यादा स्टेबल होता है आयरन का, तो Fe+3 में अब्जॉर्ब होता है। मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन के बारे में बात करेंगे। सो मैग्नीज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट। सो जो मैग्नीज है, मैग्नीज इज अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीज आयन, Mn+2 आयन के फॉर्म में। So manganese is absorbed in the form of manganese ions Mn+2. It activates many enzymes involved in photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism. The best defined function of manganese is in the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. So it is very important. Manganese is absorbed as Mn+2 ion. It activates many enzymes involved in photosynthesis, respiration, nitrogen metabolism. Photosynthesis, respiration, nitrogen metabolism. The best defined function of manganese is in the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. Splitting of water. In splitting of water, three elements are involved. That is manganese, chlorine, calcium. Photolysis of water means manganese, chlorine, calcium. Manganese, chlorine, calcium. Manganese, chlorine, calcium. So these are involved in photolysis of water. Photolysis of water, manganese, chlorine, calcium. So manganese is involved in the form of manganese ion Mn+2. It activates many enzymes involved in photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism. The best defined function of manganese is in the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. So manganese is absorbed in the form of manganese ion Mn+2. It activates many enzymes involved in photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism. The best defined function of manganese is in the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. So involved in photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism. The best defined function of manganese is in the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. Splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. So manganese is absorbed in the form of manganese ion Mn+2. It activates many enzymes involved in photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism. The best defined function of manganese is in the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. So manganese is involved in photosynthesis, respiration, nitrogen metabolism. Best defined function of manganese is in the splitting of water. Water को split करना है बोले तो manganese, chlorine, calcium. तो वाटर स्प्लिट होगा तो क्या होगा? H+ आयन्स निकलेंगे एंड ऑक्सीजन निकलेगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ओके, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है, रेस्पिरेशन के टाइम पे नहीं होता. ना ही नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कब होता है? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे. सो अगर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करना है तो 3 चीज़ें आना चाहिए दिमाग में. एक है मैंगनीज, एक क्लोरीन, एक कैल्शियम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जिंक. तो जिंक, प्लांट obtain जिंक एज Zn+2 आयन्स. Zn+2 आयन्स के फॉर्म में प्लांट्स जिंक लेते हैं. इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स स्पेशली कार्बोक्सिलेजेस. तो जो कार्बोक्सिलेजेस है उन्हें कौन एक्टिवेट करता है? जिंक. हमने अभी एक एग्जाम देखा, लाइक एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस. Zn+2 इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंड मेनी कार्बोक्सिलेजेस. स्पेशली कार्बोक्सिलेजेस को जिंक एक्टिवेट करता है, कार्बोक्सिलेजेस को. और एक एंजाइम है दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस. अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को कौन एक्टिवेट करता है? दैट इज Zn+2. Zn+2 activates alcohol dehydrogenase. Zn+2 activates alcohol dehydrogenase and it specially activates carboxylases.
It activates various enzymes, especially carboxylases. इट इज़ ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन. जो IAA ऑक्सीजन है उसके सिंथेसिस के लिए हमें जिंक रिक्वायर्ड होता है. क्या रिक्वायर्ड होता है? जिंक. जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? जिंक. जिंक इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? जिंक. सो जिंक किसको एक्टिवेट करता है? कार्बोक्सिलेसिस स्पेशली एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस. ये कहीं नहीं, NCERT में ही देकर है, जहाँ पे हमने एसेंशियल एलिमेंट्स को फोर कैटेगरीज में ब्रॉडली कैटेगराइज किया है. उसमें से एक है एक्टिवेटर. एक्टिवेटर्स में से इनहिबिट्स और एक्टिवेट्स द एंजाइम्स. जैसे कि जिंक एक्टिवेट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंड मैनी कार्बोक्सिलेजेस स्पेशली. बोरॉन इट इज़ एंड वन मोर थिंग, कॉपर. इट इज़ अब्जॉर्ब्ड एज क्यूप्रिक आयॉन्स. क्यूप्रिक आयॉन्स मतलब Cu+2. जो कॉपर दो फॉर्म में होता है, एक Cu+1 होता है, एक Cu+2 होता है. जो Cu+2 है वो क्यूप्रिक आयॉन्स बोलते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. इट इज़ एसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स. ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? कॉपर. इट इज़ एसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स. कॉपर इज़ एसेंशियल फॉर द overall metabolism of plants. Copper is essential for the overall metabolism of plants. Copper is essential for the overall metabolism in plants. Like iron, it is associated with certain enzymes involved in redox reactions and is reversibly oxidized from Cu+2. कॉपर भी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो रहा है आयरन की तरह. जैसे आयरन Fe+2 to Fe+3 में ऑक्सीडाइज होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली कॉपर भी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है Cu+ से Cu+2. सो कॉपर को Cu+2 और आयरन को Fe+3. इट इज़ एसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स. ओवरऑल मेटाबॉलिज्म करवाना है प्लांट्स में तो कॉपर की ज़रूरत है. लाइक आयरन, इट इज़ एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शंस. ये ऐसे एंजाइम्स के साथ एसोसिएटेड है जो रेडॉक्स रिएक्शंस करवाते हैं. तो ये भी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है Cu+ से Cu+2 हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के तरफ. बोरॉन. तो बोरॉन क्या है? इट इज़ अब्जॉर्ब्ड एज जो बोरॉन है absorbed as BO3-3. बोरॉन इज absorbed as BO3-3 और B4O7-2. तो एक है BO3-3 या B4O7-2. तो ये दो फॉर्म्स है, BO3-3 या फिर B4O7-2. बोरॉन इज़ रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ Ca+2. अगर कैल्शियम को अपटेक करना है, उसको यूटिलाइज करना है, तो बोरॉन की ज़रूरत है. मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, हमने बोला था ना कि फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ मेंटेन्ड बाय कैल्शियम. It is involved in the normal functioning of cell membrane. Calcium is involved in normal functioning of cell membrane. Normal functioning of cell membrane के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड है. बोरॉन अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पॉलन जर्मिनेशन. अगर पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करना है, जैसे प्लांट्स पे पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करना है तो बोरॉन की ज़रूरत पड़ेगी. सेल इलोंगेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन करना है तो बोरॉन की ज़रूरत पड़ेगी. कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ना कार्बोहाइड्रेट क्या है? सुक्रोस. तो सुक्रोस के ट्रांसलोकेशन, देखो सुक्रोस ना प्लांट्स में ना कैसे फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में जो सुक्रोस होता है वो सुक्रोस बोरेट के फॉर्म में होता है. तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो बोरॉन है वो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है. सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल इलोंगेशन, पॉलन जर्मिनेट होने के लिए, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, कैल्शियम को लेना, अपटेक करना और उसको यूटिलाइज करना बोरॉन रिक्वायर्ड होता है. मॉलिब्डेनम, प्लांट्स अपटेन it in the form of molybdate ions. Plants obtain it in the form of molybdate ion, MoO2+2. So plants obtain it in the form of molybdate ion. molybdate ion क्या है? MoO2+2. तो MoO2+2 क्या है? molybdate ion. So plants obtain it in the form of molybdate ions
it is a component of several enzymes, including nitrogenase and nitrate reductase, both of which participate in nitrogen metabolism. So plants obtain it in the form of molybdenate ion MoO2-2. इसको हम molybdenate ion बोलते हैं. MoO2-2, it is a component of several enzymes including nitrogenase and nitrate reductase. तो nitrogenase वहाँ पे ना जहाँ पे दिया था ना 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है एसेंशियल एलिमेंट्स को, वहाँ पे मोलिब्डेनम एंड मोलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजनेस ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. तो मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेस का एक्टिवेटर है ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बोल के देखा. यहाँ पे क्या देखे, दो भी नाइट्रोजनेस और नाइट्रेट रिडक्टेस, ये दोनों का भी एक्टिवेटर कौन है, molybdenum, both of which participate in nitrogen metabolism. Nitrogen reductase, nitrate reductase and nitrogenase and nitrate reductase. Talking about chlorine, so it is absorbed in the form of chloride ions. So जो chloride ions हैं, जो क्लोरीन है वो क्लोराइड आयन्स के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है. जो क्लोरीन है वो क्लोराइड आयन्स के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है. Along with Na plus and K plus, it helps in determining the solute concentration of the anion cation balance in cells. Anion cation balance मैंने बताया था कि 3 चीज़ें करती हैं. एक है पोटासियम, एक है सोडियम और एक है क्लोरीन. ये है ऑस्मोटिक पोटेंशियल बैलेंस करती हैं. एनियन कैटायन बैलेंस कौन करता है, पोटासियम एंड क्लोरीन. इन सेल्स इट इज़ एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन. मैंने बोला था ना 3 चीज़ें याद रखना वाटर स्प्लिटिंग में, तो मैंगनीज, क्लोरीन एंड कैल्शियम. इट इज एसेंशियल फॉर वाटर splitting reaction in photosynthesis, a reaction that leads to evolution of oxygen evolution. ऑक्सीजन निकलता है, वाटर स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन निकलता है. सो क्लोरीन इज absorbed in the form of chloride ion Cl minus along with Na plus and K plus. It helps in determining the solute concentration and the anion cation balance in cells. It is essential for water splitting reaction in photosynthesis, a reaction that leads to oxygen evolution. So chlorine, it is absorbed in the form of chloride ions, Cl minus ions along with Na plus and K plus. It helps in determining solute concentration and the anion cation balances in cells. So along with sodium, potassium, it helps in determining the solute concentration and the anion cation balance. So chlorine, Cl minus, Na plus, K plus helps in determining the solute concentration and anion cation balance. 3 चीज़ें anion cation balance करती हैं. एक चीज़ है आपका very very important, that is potassium and sodium and chlorine. So ये सब ना anion cation balance में हेल्प करते हैं. ऑस्मोटिक concentration भी, osmotic concentration भी. It is essential for water splitting reaction in photosynthesis, a reaction that leads to evolution of oxygen. So water split करना है मतलब 3 चीज़ों को बुलाना, मैंगनीज, क्लोरीन एंड कैल्शियम. सो ये हो गया हमारा कंप्लीट डिटेल, ईच एंड एवरी पॉइंट हमने डिस्कस किया है. इसको याद करने की कोशिश की है, 2 से 3 बार रिपीट किया है. सो आई थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू. थैंक यू सो मच. Please consider subscribing my channel, share it with your friends and watch this videos twice or thrice so that you will be thorough with each and every line. आपको हर लाइन याद करना है क्योंकि any line can be twisted and given as a question, and there is a possibility that even after studying by yourself you might be doing wrong. So मैंने जिस तरह से discuss किया है, I think this will be very helpful. And आप ये you can use this videos for revision purpose. This will be absolutely helping you to improve your score in test. Thank you so much.